Hello, friends. I am Ankit sir, your English teacher, welcoming you all to our Galaxy Group of Science Institute, which is your town's best science school, giving you not only an environment to study but also teaches you the moral values for life. So, friends, this is your new journey towards making your future, a step towards achieving your goal. And of course, the first step is very hard for anyone, but have patience in you. We at Galaxy trying to give you the best for the next 2 years, helping you to achieve your goals. Throughout these 2 years, you will be learned 5 subjects, that is physics, chemistry, maths or bio, computer and English. And here, as your new English teacher, I am going to give you some brief introduction about your subject. In 11th, we are going to learn 2 books in English. One is your NCERT textbook, that is Hornbill, and another is supplementary reader, that is Snapshot. Apart from these 2 books, we will also have the sessions for grammars. So friends, today I am going to start our NCERT textbook Hornbill's first lesson, that is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. I am very much aware with the fact that many of the students still didn't buy the textbooks. But I am glad to tell you that you don't need any textbook to learn online. So just relax and focus on the video so that you can learn something new every day. So friends, today we are going to start our first lesson, that is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. It was a very wonderful and short lesson written by Khushwant Singh in the memory of his old grandmother. So the whole lesson giving you the details about how his old grandmother is, right? So let's start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old man. See, the way writer has written is very wonderful. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old man. मेरी जो ग्रैंडमदर है वो जैसे हर एक की ग्रैंडमदर होती है उसी तरह बिल्कुल ही ओल्ड वुमन थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मैं पिछले कई सालों से उसे जानता हूँ. पिछले 20 सालों से जो कि मैं उसे जानता हूँ वो मुझे कैसी दिखी है, बहुत ही ओल्ड दिखी है. एंड रिंकल्ड का मीनिंग क्या है कि हैविंग लाइन्स और फोल्ड्स. इट मीन्स उनके चेहरे ऊपर इतनी सारी झुर्रियाँ आ चुकी है. और मैं पिछले जितने सालों से उनको जानता हूँ उतने सालों से मैंने उनको ऐसा ही देखा है. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब लोग कहते आए थे कि एक टाइम था कि वो भी मेरी ग्रैंडमदर है, वो भी बिल्कुल यंग एंड प्रीटी लग रही थी. और लोग ऐसा भी बता रहे थे कि उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था. और ये सारी चीज़ें बहुत ही हार्ड होती थी मेरे लिए बिलीव करना कि उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अब यहाँ पर 2 सारे वर्ड्स है. पोर्ट्रेट यानी क्या होता है कि एक किसी भी इंसान का जो पेंटिंग होता है उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं. और मेंटल पीस, अब मेंटल पीस क्या होता है यहाँ पर आप देख लो. पहले आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो, राइट. अ स्ट्रक्चर ऑफ वुड, मार्बल और स्टोन अबव एंड अराउंड द फायर प्लेस. अब जो पुराने घर होते हैं उनमें बहुत बाहर सर्दियाँ होती थी तो घर को थोड़ा सा गर्म रखने के लिए घर के अंदर एक फायर प्लेस बना होता था. और यही फायर प्लेस के ऊपर, अब ये जो फायर प्लेस है वो किसका बना होता है, शायद तो वुड का बना होता है, मार्बल का बना होता है, स्टोन का बना होता है, जिस किसी भी मटेरियल से बना होता है. उसके ऊपर का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल पीस कहते हैं. तो यहाँ पर खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि मेरे जो ग्रैंडफादर है उनकी पेंटिंग हमारे घर का जो फायर प्लेस है, मेंटल पीस है, उसके ऊपर लगाया हुआ था. ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. और उन्होंने एक बहुत बड़ी टर्बन पहनी हुई थी, पगड़ी पहनी हुई थी. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ऐसे कपड़े पहने थे कि उनके जो बॉडी है बिल्कुल उस बॉडी पे लूज लग रहे थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और उनकी बियर्ड इतनी लंबी थी, वाइट कलर की उनकी बियर्ड थी और इतनी लंबी थी कि शायद उनकी जो चेस्ट है, उनका पेंटिंग में उनकी जो चेस्ट दिख रही है वो पूरी चेस्ट किससे कवर हुई थी, उनकी बियर्ड से कवर हुई थी. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old.
और फ़ोटो में देखकर ही हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो करीबन 100 साल पुराना उनका ये पेंटिंग है। He did not look the sort of person who would have a wife or a children. और वो पेंटिंग में इस तरीके से लग रहे थे कि उनको ना तो उनके कोई बच्चे लग रहे हैं या ना ही उनकी कोई वाइफ लग रही है कि उनकी कोई वाइफ रही होगी या उनके कोई बेटे रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और वो ऐसे लग रहे थे जैसा कि मानो कि उनके बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन है। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब यहाँ पर जो वर्ड्स है राइट, ये जो आपका यहाँ पर देखना है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये एक बहुत अच्छा सा फ्रेज़ है और आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे 5-6 फ्रेज़ आपको दिए हैं जो आपको यहाँ पर जानने हैं। तो ये जो फ्रेज़ है वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो एक बिल्कुल यंग एंड प्रिटी लग रही थी और उसके मुकाबिल ये जो चीज़ है बहुत ही हार्ड बिलीव करने के लायक थी नहीं, राइट। इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव कि उनके कभी हस्बैंड होंगे, क्योंकि वो जब छोटी होगी तब बहुत ही यंग एंड प्रिटी रही होगी। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वो हमेशा, हमारी जो दादी माँ है वो हमेशा बहुत ही सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। हमारी जो दादी माँ है वो बचपन में वो जो गेम खेला करती थी उसके बारे में हमें बात किया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, और वो हमें शायद थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा था एंड अनडिग्निफाइड, इट मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था ऑन हर पार्ट। क्योंकि वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स से यूज टू टेल अस, और वो हम उस गेम को, वो जो हमें चीज़ें बता रही थी उसे हम किस तरीके से लेते थे, एक जो प्रॉफिट्स जो कहानियाँ सुनाते हैं राइट। फेबल्स क्या होती है कि फिक्टिशियस स्टोरी विथ अ मॉरल टीचिंग। एक हमने बहुत सारी पंचकथा देखी होगी राइट, मालगुडी डेज हमें पता है राइट। तो ये मालगुडी डेज क्या होता था कि एक स्टोरी होती थी और उस स्टोरी के पीछे हमें एक मोरल लेसन मिलता था। तो ऐसी ही स्टोरी जो प्रॉफिट्स क्या होते हैं कि सेंट होते। अब जो प्रॉफिट हमें जिस तरीके की कहानियाँ सुनाते थे मोरल लेसन वाली, हमारी दादी माँ हमें जिस तरीके से ये सारी चीज़ें, वो जो गेम खेलती थी वो हमें जो सारी चीज़ें बताती थी वो हम उस तरीके के लेते थे उसे। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। वो हमेशा से ही बिल्कुल ही छोटी सी और उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फैट हुआ करता था और स्लाइटली बैंड, इट मीन्स आगे से वो झुके हुए रहते थे। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। सी द एक्सप्लेनेशन हियर, वो क्या बता रहे हैं कि हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, इट मीन्स उनको अगर देखा जाए, बहुत ही नज़दीक से उनको देखा जाए तो उनके सारे मुंह के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, हर एक जगह देखो तो जूरिया ही जूरिया आपको मिलेगी। इट मीन्स क्रिस क्रॉस वे में क्या बता रहे, अ पैटर्न ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स। अ पैटर्न ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन वहाँ से खींची हुई होती है और वो लाइन किसकी होती है, जूरियों की होती है, रिंकल्स की होती है। इट मीन्स पूरा उनका जो चेहरा है वो रिंकल्स से भरा हुआ था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हमें सच में पता था, वी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और जब से हमने देखा है उनको तब से ही उनका फेस कुछ इसी तरीके से मैंने देखा है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। ओल्ड इट मीन्स वो इतनी बूढ़ी लग रही थी कि इससे ज़्यादा कोई और बूढ़ा लग सकता नहीं है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से शायद वो इसी प्रकार से और इस ऐसी ही ज़िंदगी वो जीते आए हैं, और उनका फेस भी शायद थोड़ा सा भी 20 ईयर्स में चेंज हुआ नहीं है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यहाँ पर जो खुशवंत सिंह उनकी जो ग्रैंड मदर है उनका जो डिस्क्रिप्शन देते हैं वो बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी,
वो कभी भी इतनी प्रिटी हो नहीं सकती थी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन अगर उनकी बात की जाए तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। अब ब्यूटीफुल किस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनका नेचर उनको बहुत पसंद आता था, उनके नेचर के हिसाब से वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब यहाँ पर खुशवंत सिंह क्या बता रहे हैं कि सी होबल्ड अबाउट इन द हाउस। होबल्ड का मीनिंग क्या होता है? वॉक्ड इन एन ऑकवर्ड वे। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ओल्ड जो ग्रैंड मदर होती है उनको आगे की तरफ झुका हुआ देखा होगा, राइट। और हाथ में जो स्टिक होती है वो स्टिक पकड़ के वो हाथ में चलते हैं, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सी होबल्ड अबाउट इन द हाउस। इट मीन्स ऐसे टेढ़े मेढ़े वे में वो घर में चला करते थे। इन अ स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. और बिल्कुल ही स्पॉटलेस वाइट, इट मीन्स वाइट कलर की साड़ी पहने, एक हाथ उनका कहाँ होता था? उनकी वेस्ट के ऊपर होता था, जिससे उनका जो स्टूप है, स्टूप क्या होता है? बैंड वंस बॉडी फॉरवर्ड। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आगे की ओर जो झुके होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टूप कहते हैं। तो वैसे हॉबल्ड का मीनिंग आगे ही बता दिया। तो ये यहाँ पर क्या बता रही है कि वो बिल्कुल ही वाइट कलर की साड़ी पहने, उनका एक हाथ जो होता है वो वेस्ट के ऊपर होता है और दूसरा हाथ जो होता है उसमें क्या होता है? बीट्स ऑफ अ रोजरी। रोजरी का मीनिंग क्या होता है? अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स, जिसे हम माला कहते हैं, राइट। भगवान को जो माला हम करते हैं भगवान की, उसे हम कहते हैं रोजरी। तो उनकी जो फेबल्स होते हैं उनको वो गिना करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडीली ओवर हर पैल प्लकड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्लेयर। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यानी यहाँ पर क्या है? हेयर है। और उनके सिल्वर लॉक्स क्यों बताए गए हैं? कि उनकी एज कुछ ज़्यादा ही हो गई है और उनकी एज की वजह से उनके जो हेयर है वो बिल्कुल ही सिल्वर कलर के हो गए। और स्कैटर्ड अनटाइडीली ओवर हर पैल प्लकड फेस, उनका बिल्कुल ही मुरझाया हुआ फेस है। प्लकड, प्लकड का मीनिंग क्या है? अ फेस कॉन्ट्रैक्ट इनटू व्रिंकल्स। इट मीन्स फेस पे बहुत सारी झुर्रियाँ है और ऐसे फेस के ऊपर उनकी जो सिल्वर कलर के हेयर है वो इधर उधर स्कैटर्ड हुए हैं, इट मीन्स बिखरे हुए हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्लेयर, और उनके जो लिप्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली कभी सुनाई नहीं देने वाली ऐसी ही प्रेयर्स करते रहते हैं। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. My grandmother and I were good friends. अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि हाँ, सच में मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ही सुंदर थी, और उनकी जो ब्यूटी है उसको उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अगर आपने माउंटेन को विंटर में देखा है तो वो आपको दिखेगा कि बिल्कुल वाइट बर्फ़ उसके ऊपर लगा आया हुआ है, और आप बर्फ़ को देखकर, माउंटेन को देखकर कह सकते हो कि ये बहुत ही बढ़िया सा एक पेंटिंग के तौर पे अगर आप उसे देखते हो तो आपको वो लग रहा है। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यहाँ पर ये चीज़ क्या रिफ़र कर रही है? टू द काम एंड रिलैक्स एंड पीसफुल कैरेक्टर ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। ऑथर की जो ग्रैंड मदर है उनका नेचर, उनका कैरेक्टर यहाँ पर बताया हुआ है कि वो बिल्कुल कैसा फील करती थी। रिफर्स टू द काम, रिलैक्स एंड पीसफुल कैरेक्टर ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। वो बता रहे कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आई मीन्स यहाँ पर कौन है? खुद खुशवंत सिंह है। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they want to live in the city and we were constantly together. मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे उनके पास छोड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि उनको कहाँ शिफ्ट होना था? सिटी में शिफ्ट होना था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। वो हमेशा मुझे स्कूल के लिए उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart.
अब यहाँ पर वो क्या बता रहे, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। अब मोनोटोनस क्या होता है कि बिल्कुल डल एंड बोरिंग वे में। तो सुबह सुबह जब वो उठती थी तो सुबह सुबह में ही वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर बिल्कुल ही मोनोटोनस वे में शुरू कर देती थी। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी तब वो ये प्रेयर गाया करती थी। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और उसे एक ये होप रहती थी कि शायद मैं उसे अच्छे से सुनूंगा और बहुत अच्छे से उसे लर्न बाय हार्ट कर लूँगा। इट मीन्स याद कर लूँगा। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट। मैं इसीलिए सुनता था कि क्योंकि मुझे मेरी जो दादी माँ है उनकी आवाज़ पसंद थी, बट आई नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैंने उसे लर्न करने का ट्राई किया नहीं था। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद वो क्या करती थी कि उसके बाद वो जो मेरी वुडन की स्लेट हुआ करती थी, अभी नॉर्मल आप देख रहे होंगे कि छोटे बच्चे जो स्लेट यूज़ करते हैं लिखने के लिए, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ करता था, वुडन स्लेट हुआ करती थी, तो वो उसे ले आती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे उसने पहले से वॉश करके रखा था, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक। अब प्लास्टर्ड विथ येलो चौक क्या होता था कि अब वुडन की स्लेट हुआ करती थी तो वुडन की स्लेट के ऊपर वाइट कलर का थोड़ा सा प्लास्टर लगाना पड़ता है, तो उसने क्या किया था कि येलो चौक से उसे थोड़ा सा प्लास्टर कर दिया था। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, एक छोटा सा टाइनी अर्थन इंक पॉट होता है। इंक पॉट कैसा होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट, एंड अ रेड पेन, उसके ऊपर आप जो फेदर देख रहे हो उसे हम कहते हैं रेड पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, सब कुछ एक साथ में, स्लेट है, इंक पॉट है, रेड पेन है, सब कुछ एक साथ में बंडल में बांध के वो मुझे थमाया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। उसके बाद क्या होता था, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, इट मीन्स बिल्कुल ही चौड़ी सी स्टेल चपाती। स्टेल क्या होता है कि कल की जो फ्रेश नहीं होती है, राइट, कल शाम को, पिछली रात शाम को उन्होंने जो चपातीस बनाई होगी वो सुबह में ब्रेकफास्ट में वो खाया करते थे। विथ अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, बस केवल उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर स्प्रेड कर दिया जाता था और उसके बाद हम कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और साथ में जैसे ही हम दोनों स्कूल की ओर आगे बढ़ रहे थे वो भी उसके साथ में थोड़ी जो बाकी बची जो चपातीस होती है पुरानी, वो विलेज डॉग्स जो होते हैं उनके लिए भी वो ले जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, और मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल इसलिए आया करती थी क्योंकि मेरी जो स्कूल है उसके ही बगल में एक टेम्पल हुआ करता था और उसी की वजह से वो वहाँ पर आया करती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ पर जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो हमें थोड़े बहुत अल्फ़ाबेट सिखाया करते थे और सुबह की जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती थी वो सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ वरंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड एंड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। अब जबकि हम दोनों स्कूल जाया करते थे तो यहाँ पर खुशवंत सिंह बताते थे कि जब हम बच्चे एक रो में बैठ के एक साइड वरंडा में बैठे बैठे अल्फ़ाबेट को रिसाइट कर रहे होते या फिर प्रेयर एक कोरस में गा रहे होते। कोरस क्या होता है कि एक साथ में सभी जो बच्चे हैं एक साथ जब प्रेयर गाते हैं तो उसे हम कहते हैं कोरस। एंड माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी ग्रैंड मदर उसके अंदर बैठे बैठे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, द स्कैर्ड राइटिंग ऑफ अ रिलीजन, किसी भी रिलीजन की जो स्कैर्ड राइटिंग बुक होती है, जैसे कि हमारे हिंदू की अगर बात की जाए तो हिंदू में महाभारत है, रामायण है, मुस्लिम की बात की जाए तो कुरान है, क्रिश्चियन की बात की जाए तो बाइबल्स है, ऐसी सारी बुक्स वो पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together, और जब हम दोनों का ख़त्म हो जाता था उसके बाद हम दोनों एक साथ में घर की ओर वापस जाते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और उसे टाइम जो विलेज डॉग्स होते हैं वो हमें टेम्पल के डोर पे ही मिल जाते हैं। दे फॉलोड अस टू अवर होम,
ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। और वो जो डॉग्स होते हैं वो हमारे घर तक पीछा करते थे। कैसे पीछा करते थे? ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर। ग्राउलिंग का मीनिंग क्या होता है? मेकिंग अ लो गटरल साउंड इन द थ्रॉट। इट मीन्स जो डॉग्स की जो छोटी सी आवाज़ होती है वो निकालते थे और एक दूसरे के साथ लड़ते थे। किसके लिए लड़ते थे? वही चपाती जो हमने जो पुराने कल की जो स्टाइल चपाती उनको फेंकी हुई थी वो खाने के लिए झगड़ते रहते थे। एंड माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, दे सेंट फॉर अस। जब हमारे पेरेंट्स अच्छी तरीके से सिटी में सेटल हो चुके थे उसके बाद उन्हें हमें लेने के लिए किसी को भेजा था। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और यहीं इसी दौरान मेरी और मेरी जो दादी माँ है उनकी बीच में जो फ्रेंडशिप थी वहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। ऑल्दो वी सैट द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। हालांकि सिटी में भी अब मैं और मेरी ग्रैंड मदर दोनों कहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे? सिटी में शिफ्ट हो गए थे। तो खुशवंत सिंह यहाँ पर बता रहे थे कि हालांकि मैं और मेरी ग्रैंड मदर एक ही रूम में रहा करती थी, मेरी ग्रैंड मदर अब मेरे साथ कभी भी स्कूल नहीं आया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। और मैं सिटी में एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था और वो इंग्लिश स्कूल में मैं एक मोटर बस में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब खुशवंत सिंह बता रहे कि जब हम सिटी में शिफ्ट हो चुके थे तब अब स्ट्रीट के ऊपर कोई भी डॉग्स हमें मिलते नहीं थे और मेरी जो दादी माँ है वो अब हमारे ही कोर्टयार्ड में, हमारे ही घर का जो एक वरंडा होता है उसी में स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रोल्ड बाई इट मीन्स जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे हम एक दूसरे को बहुत कम देखा करते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए जैसे ही हम सिटी में ट्रांसफ़र हुए थे वहाँ से कुछ समय के लिए वो मुझे स्कूल के लिए उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। जैसे ही वो अपने जो गांव होता है वहाँ पर वो जो चीज़ किया करती थी वही चीज़ वो यहाँ पर कुछ समय के लिए किया करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। और जब भी मैं स्कूल से वापस आता था तब वो मुझे पूछा करती थी कि मुझे स्कूल में टीचर ने क्या सिखाया था। I would tell her English words and little things of Western science and learning। और मैं उन्हें थोड़े बहुत से इंग्लिश वर्ड कह देता था और थोड़ी बहुत जो वेस्टर्न साइंस और उसकी जो लर्निंग होती है उसके बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा। इट मीन्स आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, ग्रेविटी है, ये सभी लॉ की जो ग्रेविटी है, हमारे आसपास का जो भी वर्ल्ड है उसके बारे में मुझे जो स्कूल में बताया जाता था वो सारी चीज़ें मैं घर पे आके अपनी दादी माँ को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। और ये सुन के वो बिल्कुल ही नाखुश हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। क्यों वो नाखुश हो जाती थी? क्योंकि अब वो मुझे मेरे लेसन में कभी भी हेल्प नहीं कर पा रही थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। अब वो दादी माँ है ना, अब डेफिनेटली है कि दादी माँ बहुत पुराने ज़माने के हैं तो उन्हें जो इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उनमें यकीन नहीं था एंड वॉज डिस्ट्रेस। और ये देखकर वो बिल्कुल ही डिस्ट्रेस हो जाती थी। डिस्ट्रेस यानी आपको पता होगा सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीमली पेन। उसे बहुत दुख होता था दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। क्यों? क्योंकि इंग्लिश स्कूल में वो कहीं पर भी किसी गॉड या किसी स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी। केवल वहाँ पर यही सारी चीज़ें जो टेक्स्ट बुक होती है उसी की पढ़ाई हुआ करती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक क्लासेस। अब एक दिन की बात है जब मैंने उनको ऐसा बताया कि हमें अब स्कूल में म्यूज़िक के लेसन देने वाले हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब। और ये बात सुनकर तो वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उसके लिए म्यूज़िक के साथ बिल्कुल ही स्ट्रेंज एसोसिएशन जैसा लग रहा है।
इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेयरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक्स। वो मुझे बताती थी कि ये म्यूज़िक सीखना वो किसके लिए होता है, हेयरलॉट्स के होता है, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है उसके लिए होता है, बेगर्स के लिए होता है, नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। इट मीन्स जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोगों के लिए म्यूज़िक अच्छी बात नहीं होती थी, वो ऐसा मानती थी। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल। ये बात सुनने के बाद वो कुछ बताती नहीं थी, लेकिन उसका साइलेंस देखकर मुझे पता चल जाता था कि वो मना कर रही है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद तो शायद उसने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया था, बिल्कुल कम बात किया करती थी मुझसे। When I went up to university, I was given a room of my own. अब जबकि मैं यूनिवर्सिटी के लिए, इट मीन्स मेरे स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके मैं जब आगे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए जाता हूँ, आई वॉज गिवन अ रूम फॉर माई ओन, तब मुझे खुद का एक रूम दिया जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और अचानक से मेरी और मेरी दादी माँ के बीच की जो एक कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप की, वो यहाँ पर स्नैप्ड हो जाती है। इट मीन्स टूट जाती है, ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली। इट मीन बिल्कुल तरीके से वो छूट जाती है यहाँ पर। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्यूल्जन विथ रेजिग्नेशन। अब एक्सेप्टेड हर सेक्यूल्जन विथ रेजिग्नेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया है, द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड अ लोनली लाइफ एज सी एक्सेप्टेड द सेपरेशन फ्रॉम हर ग्रैंड सन विदाउट ऑब्जेक्शन। इट मीन्स अब हालांकि मैं यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो चुका था, मेरी अलग से रूम हो गई थी, तो अब मेरी दादी माँ घर पे अकेली रह गई थी, राइट। तो उसने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही लोनली होने वाली थी, क्योंकि वो हालांकि उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनके साथ काफ़ी बात किया करती नहीं थी। जो केवल किसी से बात करती थी वो कौन थे, हमारे खुशवंत सिंह थे। तो इसीलिए माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्यूल्जन विथ रेजिग्नेशन। और इसीलिए यहाँ पर वो बता रहे कि उन्होंने अपनी जो लोनली लाइफ है उसे एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। अब वो क्या करती थी, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन। इट मीन्स स्पिनिंग व्हील, आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि जो आटा गूंदने के लिए जो गेहूँ गूंदने के लिए हम बनाते हैं जिसमें से आटा बनता है, तो वो जो चीज़ है वो केवल पूरे दिन के दौरान किसी से बात नहीं करती थी, वो केवल स्पिनिंग व्हील ही चलाया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से लेकर शाम तक वो वहाँ पर बैठे बैठे जो स्पिनिंग व्हील है उसे घुमाया करती थी और अपनी जो प्रेयर्स है उसे दोहराया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और जब दोपहर होती थी तब दोपहर के टाइम के दौरान कुछ समय के लिए वो अपना स्पिनिंग व्हील छोड़ती थी और जो स्पैरोज है उसे खाना खिलाया करती थी और खुद को भी रिलैक्स किया करती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable belldum of chirpings. अब यहाँ पर भी एक नया सा फ्रेज़ आया हुआ है। अब क्या बता रहे हैं कि while she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, it means वरंडा में बैठे बैठे जो ब्रेड होती है उसे उसके छोटे छोटे टुकड़े किया करती थी, तब 100 of little birds collected round her. It means बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो उसके अगल बगल में इर्द गिर्द में आकर बैठ जाते थे। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरपिंग्स, वो यहाँ क्या रिफ़र कर रहा है, टू द नॉइज एंड कन्फ्यूजन कॉज्ड बाय द चिरपुंग ऑफ द स्पैरोज। इट मीन्स इतनी सारी स्पैरोज आ गई थी, उसके अगल बगल में आकर बैठ जाती थी कि सच में यकीन मानो कि वो जगह इतनी जो स्पैरोज है उनकी आवाज़ से भर जाती थी। वो यहाँ पर नरेटर ये दिखाना चाहते हैं। Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. यहाँ पर खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि कुछ तो ऐसी स्पैरोज होती है जो उसके पैरों के ऊपर आकर बैठ जाती थी, कुछ ऐसी होती थी जो उसके शोल्डर्स पे बैठती थी। Some even sat on her head. आपने देखा होगा, आपने एक मूवी देखी होगी शायद, वो मुझे याद है वहाँ तक वो वेलकम मूवी थी। और वेलकम मूवी में अगर आप याद करो अच्छे से तो आपको पता होगा कि जब इंटरवल का टाइम होता है तब आप देखते हो कि अक्षय कुमार जो खड़ा होता है और उसके इर्द गिर्द उसके शोल्डर के ऊपर दो
पिजन्स आके बैठते हैं और तीसरा उसके हेड के ऊपर आकर बैठता है, राइट। सेम उसी तरह कुछ जो स्पैरोज़ होती थी वो उनके लेग के ऊपर बैठती थी, कुछ उनके शोल्डर्स के ऊपर बैठ जाती थी और कुछ तो ऐसी होती थी कि उनके हेड के ऊपर भी आकर बैठ जाया करती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर सूट देम अवे। और केवल मेरी दादी माँ है वो उसे बहुत अच्छी तरीके से स्माइल से उसे एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन कभी भी सूड अवे का मीनिंग क्या होता है कि उनको भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और शायद ये पूरे दिन का एक ही ऐसा हाफ एन आवर होगा जो उसके लिए सबसे अच्छा रहा होगा, सबसे हैप्पी रहा होता है। When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब जबकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ फर्दर स्टडीज़ के लिए मुझे अब्रॉड जाना था, तब मुझे पता था कि ये बात सुनकर मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो जाने वाली थी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। अब जबकि मैं 5 साल के लिए बाहर जाने वाला था, तब अब देख लो कि मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी अगर एज की बात की जाए तो इस एज के ऊपर कोई सामने से नहीं बताता है कि आप मत जाओ, बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ऐसी थी कि वो मुझे बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। हालांकि वो बिल्कुल ही सेंटिमेंटल नहीं हुआ थी, बिल्कुल ही सेंटिमेंटल नहीं हुई थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई थी, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन मेरे से बात नहीं की थी और कोई भी किसी भी तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है चेहरे के ऊपर, ऐसा कोई एक्सप्रेशन उन्होंने नहीं दिया था। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और वहाँ पर खड़े खड़े उसके जो लिप्स होते हैं वो बिल्कुल ही प्रेयर रिसाइट कर रहे होते हैं। हर माइंड लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका जो माइंड है वो बिल्कुल जो प्रेयर है उसमें मग्न हो जाता था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और उसके हाथ में वो जो माला है वो उसे माला को हमेशा जपती रहती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब हमारे जो ऑथर है खुशवंत सिंह वो वहाँ से आगे बढ़ रहे थे, तब वो केवल धीरे से उसके पास आती है और उसका जो फॉरहेड होता है उसके ऊपर उसे एक किस करके देती है। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तब वो जो उन्होंने जो किस की थी और उस किस का जो इम्प्रिंट मेरे फॉरहेड के ऊपर बचा रहा था, उसे देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ करता था। और मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि ये शायद मैं जब वापस आऊँगा तब अब मैं मेरी दादी माँ को देख नहीं पाऊँगा। तो वो जो लास्ट एक कांटेक्ट है, फिज़िकल कांटेक्ट, उसे ऐसा लग रहा था कि ये शायद हमारे बीच एक लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट रहा है। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद बीत चुके थे और 5 साल बाद जब मैं घर पे वापस आता हूँ तब वो ही मुझे स्टेशन लेने के लिए आती है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। और यकीन मानो मेरा कि जिस हाल में मैं उसे छोड़ के गया था, जिस एज के ऊपर मैं उसे छोड़ के गया था, 5 साल के बाद जब मैं वापस आया हूँ और जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई है। इट मीन्स जैसा मैंने उनको देखा था वैसे की वैसे अभी वो लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। आज भी उसके पास बातें करने के लिए उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जब भी वो मुझे गले लगाया करती थी, क्लैप्स का मीनिंग क्या होता है, होल्ड टाइटली, मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और मैं देख सकता था, मैं सुन सकता था कि वो आज भी उनके लिप्स में बस केवल वो जो प्रेयर्स रहती थी वो ही रहती थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous remarks. In the evening, a change came over her. She did not pray. अब यहाँ पर देखते हैं कि इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल,
अब 5 साल बिताने के बाद जब मैं वापस आया तो शायद मुझे ऐसा लगा कि मेरी दादी माँ ये मुझे यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी, लेकिन हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज होम सी फैट लॉन्गर। इट मीन्स पिछले कई दिनों से जो उसे खाना खिलाया करती थी, तो उसके लिए मेरे आने की खुशी कोई खुशी नहीं मानी जाती थी। उसके लिए अच्छी खुशी तो क्या थी, उसके लिए जो खाना, जो स्पैरोज़ को ब्रेड खिलाया करती थी, वही उसमें उसे सबसे अच्छी खुशी मिलती थी। एंड विथ फ्रिवोलियस रिबुक्स लाइट एंड हार्ट, क्या है फ्रिवोलियस रिबुक का मीनिंग क्या होता है, लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग। इट मीन्स यहाँ पर वो क्या बताते हैं, सी फैट लॉन्गर एंड विथ फ्रिवोलियस रिबुक। इट मीन्स छोटी छोटी जो स्कोल्डिंग होती है, इट मीन्स नाराज़ हुआ करती थी, और उस नाराज़गी में वो क्या करती थी, उसे बातें नहीं करती थी, बट केवल जो बर्ड्स है उसे केवल खाना खिलाया करती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम का टाइम था और अचानक से शाम में एक चेंज मुझे दिखा। सी डिड नॉट प्रे, उसने उस दिन प्रे नहीं की थी। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उसने क्या किया कि उसने अगर जो हमारा नेबरहुड है उसमें जितनी भी वुमेंस रहती थी, उस वुमन को बुला लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना सा बहुत ही उसे हम कह सकते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही पुराना जो ड्रम है वो लेकर आते हैं और उससे गाना शुरू कर देते हैं। For several hours, she thumped the sagging skin of the dia-plated drum and sang of the homecoming of warriors. और कुछ घंटों के लिए वो जो अब यहाँ पर आपको समझना है, द सैजिंग स्किन ऑफ द डिया प्लेटेड ड्रम। अब डिया प्लेटेड ड्रम क्या होता है कि जो बहुत ही पुराना होता है, राइट, द लूज सरफेस ऑफ द वॉर्न आउट ड्रम। इट मीन्स वो ऐसा ड्रम जो इसे बहुत पहले कई बार यूज़ किया गया है, जिसकी जो स्किन है वो बिल्कुल ही छोटी सी हो गई है, राइट। तो अब वो क्या करती है कि कुछ घंटों तक वो जो ड्रम लाए हुए हैं उस ड्रम पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मार रही होती है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और मेरे आने की वो खुशी मना रही थी। यहाँ पर होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स क्या है कि एक सॉन्ग्स होते हैं, जब वॉरियर्स जब वॉर करके वापस आते हैं और उनके मान में जो गीत गाए जाते हैं, उसी तरीके से उनको ऐसा लग रहा है कि उसका जो ग्रैंड सन आया हुआ है, तो उसकी खुशी में वो क्या करती थी, गाना गाया करती थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग। हमें उन्हें बहुत सारी रिक्वेस्ट की, परस्यूट का मीनिंग क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा करना छोड़ दे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और शायद जब से मैं उनको जानता हूँ तब से मुझे याद है कि आज ये पहला दिन है कि उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और दूसरे ही दिन वो बहुत ही बीमार हो चुकी थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। वो बहुत ही छोटा सा एक फीवर था और डॉक्टर ने हमें बताया था कि वो बहुत ही जल्दी चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर है वो कुछ अलग ही सोचती थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उसे पता चल गया था कि अब ये उसका लास्ट टाइम चल रहा है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. और उन्होंने हमें बताया, हालांकि उनकी जो लाइफ है उनका अब ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, तो उसने जो प्रे है वो प्रे करना छोड़ दिया है। She had omitted to pray. It means उन्होंने प्रे करना छोड़ दिया था। She was not going to waste any more time talking to us. और वो भी बहुत ज़्यादा टाइम हमारे साथ बातें करने में बिताना नहीं चाहती थी। We protested, लेकिन हमने मना किया। But she ignored our protest. लेकिन हमने जो मना किया उसे उसने इग्नोर कर दिया। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वो बहुत ही शांति से अपने बेड में बैठी थी और लेटे लेटे वो प्रेयर कर रही थी और अपनी जो माला है उसे जपती रहती थी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और जैसे ही हमें कुछ पता चलता उससे पहले उसके जो लिप्स है वो अचानक से स्टॉप हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उसके हाथ में जो माला थी वो बिना
जिसमें कोई जान है ऐसी उंगली में से वो नीचे गिर पड़ती है। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. पैलोर का मीनिंग क्या होता है? एन अनहेल्दी पैल अपीयरेंस। बिल्कुल ही उसका जो फेस है वो बिल्कुल पैल हो गया था और उसे देखकर हमें पता चल गया था कि वो मर चुके हैं। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. अब वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि we left her off the bed, इसलिए अब वो मर चुके थे तो हमने उन्हें बेड के ऊपर से नीचे लेटाया था। एज इज़ कस्टमरी, जैसा कि एक ट्रेडिशन होता है उसके ऊपर हम उसे ग्राउंड के ऊपर लेटा देते हैं और उसके ऊपर लाल कलर का जो श्राउड होता है, श्राउड क्या होता है? कफन। तो एक रेड कलर का जो कफन होता है वो रेड कलर का कफन उसे ढक देते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन। कुछ टाइम हमने थोड़ा दुख जताया और उसके बाद हम उनके फ्यूनरल के अरेंजमेंट के लिए उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। अब यहाँ पर दो वर्ड है, क्रूड। क्रूड क्या होता है? जो बिल्कुल ही गंदे तरीके से जिसे फिक्स किया है, रफली मेड, राइट। एंड क्रीमेटेड तो पता होगा शायद आपको कि बर्न अ बॉडी आफ्टर इट इज़ डेड। अब शायद उसे हम बर्न भी कर सकते हैं या फिर हम उसे अब खड्डा खोद के उसे दाँत पी सकते हैं। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि शाम का टाइम था। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। शाम का जब टाइम था तो शाम के टाइम में हम उनके रूम में जाते हैं, एक गंदा सा जो बहुत ही गंदी तरीके से फिक्स किया हुआ है ऐसा एक स्ट्रेचर लेके हम उसके रूम में जाते हैं टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि हम उसे उसके ऊपर बिठा जाए और उसकी जो बॉडी है उसे हम जला सकें। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड वरंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। शाम का टाइम था, जो सन है वो बिल्कुल ही सेटिंग हो रहा था, इट मीन्स धीरे 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 नीचे आ रहा था और उसकी जो रोशनी है वो रोशनी धीरे धीरे उसके रूम में आ रही थी और वरंडा में आ रही थी विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। ब्लेज क्या होता है? अ वेरी लार्ज बर्निंग फायर होती, जैसे कि वो बिल्कुल वरंडा जो अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल कैसा हो गया था? गोल्डन कलर की लाइट से भर चुका था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और जैसे ही हम उसे स्ट्रेचर के ऊपर बिठा के आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर ही कोर्टयार्ड में, वरंडा में आके ही हाफ वे में हम रुक जाते हैं। ऑल ओवर द वरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। और जैसे ही हम उसके रूम से जहाँ पर वो मरी थी उससे वहाँ से हम लेकर हम बाहर आ रहे थे, तभी हमने देखा कि अब नॉर्मल आप देख सकते हो यहाँ पर एक फीलिंग दिखाई हुई है, राइट। जैसे ही नरेटर यहाँ पर हमारे जो ऑथर है वो बता रहे हैं खुशवंत सिंह कि जहाँ पर हमारी दादी माँ की मौत हुई थी वहाँ पर हमने उन्हें रेड श्राउड के अंदर बंद किया था, कवर किया था, और वहाँ से जब हम स्ट्रेचर से हम लेकर यहाँ तक आ रहे थे तब हमें बीच में कोर्टयार्ड में रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? कि कोर्टयार्ड में आके हमने देखा कि बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो हमारी इर्द गिर्द आकर बैठ चुकी थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन आज कोई भी आवाज़ जो स्पैरोज है उनकी चोंच में से नहीं निकल रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स and my mother fed some birds for them, and my mother fed some bread for them। अब हालांकि अब यहाँ पर कोई चिरपिंग नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत बुरा लग रहा था बर्ड्स के लिए, इसीलिए मेरी जो मदर है उन्होंने कुछ ब्रेड के टुकड़े फेंके उनको खाने के लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे खिला दिए। द वे माई ग्रैंड फादर यूज टू, जैसे मेरी ग्रैंड मदर टुकड़े किया करती थी उस ब्रेड के, उसी तरीके के टुकड़े मेरी जो मदर है वो किया करती है। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें खाने के लिए फेंक देती है। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन इस बार हुआ क्या? आप देख सकते हो कि जो स्पैरोज है उन्होंने ब्रेड की तरफ नोटिस भी नहीं किया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। अच्छी बात, बहुत ही अच्छी फीलिंग यहाँ पर दिखाई जाती है कि जो बर्ड्स होते हैं
उनके अंदर भी लाइफ होती है। और ये लाइफ यहाँ पर, ये फीलिंग यहाँ पर हमें दिख रही है कि जो उनकी मदर के द्वारा जो टुकड़े फेंके गए थे, उन टुकड़ों को उस स्पैरो ने नोटिस भी नहीं किया था। और जब हम हमारी ग्रैंड मदर का जो डेड बॉडी है उसे लेकर आगे जा रहे थे, जैसे ही हम वहाँ से चले गए, वो स्पैरोज़ भी वहाँ पर उड़कर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और दूसरे दिन जो स्वीपर होता है उसने वो जो ब्रेड के टुकड़े थे उसे उठाकर डस्टबिन में रखा हुआ था। So friends, that was all your first lesson, Unit 1, the portrait of a lady. I hope so you understand everything, and still if you have any problem with this, you can contact the school, right? Thank you.